नमस्कार, फायरसाइडको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। भारतीय सिने उद्योगका एक प्रख्यात कलाकारलाई आजको अङ्कमा मैले निम्ताएको छु। सन् 1990 को दशकदेखि भारतको रङ्गमञ्चदेखि बलिउडसम्म सङ्घर्ष थालेका यी कलाकार आज भारतका सुपरस्टारहरूसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। भारतीय चलचित्र होस् वा साहित्य या गीत सङ्गीत, नेपाली दर्शकका लागि पहुँच र रुचिकै रूपमा रहेको पाइन्छ। नेपाल भारतीय चलचित्रको एउटा राम्रो बजार पनि हो, जसले गर्दा हिन्दी चलचित्रका कलाकार, निर्देशक, लेखक नेपाली दर्शकका लागि रुचाइएका पात्रकै रूपमा चिनिन्छन्। आजको फायरसाइडमा हामीले निम्त्याएका छौँ भारतीय चलचित्र जगतका सफल र उम्दा कलाकार नवाजुद्दिन सिद्दिकी। Nawazuddin Siddiqui Saab, Swagat. I would like to welcome you on Fireside. It's my pleasure to welcome you on this show. We are blessed. Thank you very much for having me. So, this is your first time visiting Nepal? Yeah, this is my first time in Nepal, yeah. How's Nepal? Amazing. The people in Nepal is amazing. They are all are amazing actually, and they are so loving. They have so much of warmth, and I'm so much impressed. I'm planning to come again. So what did you do in this tour? I think because it was a busy schedule, so we did a couple of interviews, and then we went somewhere like mountains. Langtan. Yeah, Langtan mountains, amazing. And we watched a movie, Shambhala. And that's an amazing movie, no doubt. And Min is a wonderful director. Any actor in the world would like to work the kind of director he is. So what made the Shambhala beautiful? Yeah, it's a beautiful movie. What made it beautiful? Everything, like visually is a stunning movie actually. And the theme, the content, and the performance, and Thingley, she's an amazing actress, and the whole cast and crew was so good. Is it your first time you watched Nepali movie? This is my first time, yeah. So you must have been impressed with Nepali movie. You want to watch other movies as well? Yeah, I would like now. I will start to watch another movies. Maybe you also like to work with Nepali filmmakers. Yeah, of course. If any good stuff will come to me, definitely, I would like to work. You have friends over here as well who studied drama in Delhi, NSD, in Kathmandu. Kathmandu. Anup Baral is my senior. Your senior? 1 year senior, yeah. Okay. And yeah, of course, I did a diploma from National School of Drama. I'm from National School of Drama. 96 so pass out. You meet with them often? Anup Baral and all? Yeah, I met him. Yesterday we were. You went to Langtan. Yeah. What do you like about Langtan? Everything. The weather, the mountains, the people, and the food. Was it the first time you went to mountains so close? Yeah. And for me, I was so mesmerized by when I saw the glacier and all. Yeah. It's fine if you speak in Hindi as well. Yeah, I can understand Hindi, but I'm not so acquainted to speak in Hindi. We have been watching Hindi movies since long, so I can understand. My audience also can understand. You want to invite your friends also in Nepal to watch movies or to visit, to have Yes, treks? Of course. मैं तो बोलूँगा लोगों से कि come to Nepal. Of course, it's so beautiful. People are really amazing here. So मैं तो करूँगा बोलूँगा लोगों को कि नेपाल ज़रूर आओ. नेपाल तो एक बार देखना ही चाहिए लाइफ में. इतना खूबसूरत है, और बहुत अच्छे लोग हैं. मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि लोग जो है ना बहुत ही लाइक वेलकमिंग हैं.
So we can call you a goodwill ambassador of Nepal. Yes, for promoting tourism in Nepal. I'll be so happy. Thank you so much. Yeah. Let's move on to your movie career. I remember I watched you on Kahani. And I was thinking who this guy is. And I Googled you. And I saw you started your movie career from Sarfaroz, 1999. Back then, you were struggling in theater and movie as well. You did some films for television. Yeah. Your background comes from Uttar Pradesh. And later on, in 2012, Gangs of Basipur, it made you a star. So how long was the journey from Uttar Pradesh to theater and then Mumbai, this dream of the actors? So many up and downs came to me at that time, you know, when I was struggling in Mumbai. मेरा जो गांव है वहाँ पे थिएटर कल्चर नहीं था, तो मैं बाहर निकला, मुझे कुछ दोस्तों ने प्लेस दिखाए. Then I realized, oh my God, this is the thing which I want to do in my life, my whole life. I can breathe normally in this atmosphere, in this environment, as I felt like that. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब थिएटर ही करूँगा. Then I joined National School of Drama, and then in 2000 I moved to Mumbai, shifted to Mumbai, and that time, you know, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था. बट क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स थे तो उनके टाइम पे पता नहीं चल पाता था. यू नो, भूख भी लगी है तो दूसरा भी भूखा है, तो अगर 4-5 लोग भूखे होते ना, भूख कम हो जाती है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो बट एनीवे वी स्ट्रगल अ लॉट, बट फाइनली in 2010 I got a call from Anurag Kashyap. He said to me that what kind of character you want to do, I'm writing the same character. But I didn't say anything to Anurag at the time. Were you friends? Not as friends, but he knew you? हाँ, वो मुझे, हम लोग पहले मिल चुके थे. 1-2 काम भी किए थे मैंने अनुराग के साथ, ब्लैक फ्राइडे. Yes. एंड एक सॉन्ग भी किया था मैंने, इमोशनल अत्याचार, इन देवडी. That was a massive hit as well. या तो जानते थे, मुझे बहुत अच्छे से जानते थे अनुराग. तो जब ये मैंने रोल पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं जैसा चाहता था वैसे, लेकिन कभी मैंने विश नहीं बताई अपनी अनुराग को, बट अनुराग समझ गए थे ऑलरेडी. ही अंडरस्टूड me very well, in spite of I said something to, but finally फिर उसकी तैयारी हुई. At the same time I was doing कहानी also in the same, उसी साल में मैं कहानी भी कर रहा था और उसी साल में मैं तलाश भी कर रहा था. तो तीनों फिल्में जो हैं एक 2012 में रिलीज हुई, and rest is the history. And you became the star. Not a star, but लोग जानने लगे थे. Because your dialogue from Vasipur, that dialogue, I might be wrong, बाप का, दादा का, सबका, भाई का, सबका बदला लेगा. Can you repeat it? ये वही है. आपने बहुत अच्छा बोला, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. Amazing. Let's go back to the theatre times. How hard, how difficult was it to enter NSD? Because I've heard Manoj Bajpayee saying that, telling the story of his attempts to get into NSD, but later on he could not. How hard was it to get Manoj Bajpayee, he was amazing actor even at that time also. उनको ज़रूरत नहीं थी NSD करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने अच्छे एक्टर थे. वो वहाँ के जो NSD के जो टीचर थे उनको बोलते थे कि वाई यू ट्राइंग, एक्चुअली यू हैव टू कम एज अ टीचर इन आवर स्कूल, यू शुड कम एज अ टीचर बट नॉट एज अ स्टूडेंट. तो
वो बहुत कुछ जानते थे ऑलरेडी, तो लोगों में भी शायद मनोज भाई ने 4-5 बार अटेम्प्ट किया, बट didn't get the selection in National School of Drama. But because he was so intelligent at the time also, he was like complete actor. What about I you? saw so many of performance. You got admitted easily? You got admitted Yeah, to first time, NSD? in first attempt I got the admission. in You're fortunate to get admitted into NSD. Maybe there was a turning point to burn that fire inside yourself to be an actor. Yeah, absolutely. And वहाँ पे क्या होता है, विजिटिंग फैकल्टी आती है, एक रशिया से टीचर आया था मास्को से हमें पढ़ाने के लिए, प्ले करने के लिए हमारे साथ, एंड दैट वाज द लास्ट प्ले इन एनएसडी. एंड बिफोर दैट आई वाज डूइंग सो मच ऑफ कॉमेडी. आई वाज द कॉमिक एक्टर इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. बट आफ्टर दैट he changed completely like comedy to serious role. And then I realized, oh, ये भी मेरे अंदर है. And he gave me so many things. The director called Valentine Tepliko, who came from Moscow. I think उसके प्ले से मैंने बहुत कुछ सीखा and realize किया कि मेरे अंदर कुछ और भी है जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तो वहाँ से मेरा जो है, मुझे सुर मिला. कहते हैं ना कि एक सुर मिल जाता है ना, और मोटिवेशन और एक नोट मिल जाता है आपको, एक्टिंग का, अच्छी एक्टिंग का. चिंगारी, एग्जैक्टली द राइट वर्ड. Well, when you did that small, tiny role in 1999 in Sarfarosh with Amir Khan, later on, you got an opportunity to do another film after only 5 or 6 years. Back then, you also did a small role in Shool. Yeah, of course. मैंने तो एक सीन के रोल इतने किए, मैं खुद परेशान हो गया था. फिर मैंने मैंने डिमांड करना शुरू किया कि यार मुझे अब 2 सीन दो, तो फिर मैंने 2 सीन फिल्मों में करना शुरू किया. Then you got 2 scenes on Munna Bhai MBBS. Yeah, and I got 3 scenes in Black Friday, and so many films. I can't share the list actually. How did you manage to maintain that urge to do acting or be in the industry with so much struggle? 1 scene and then 2 scenes after 5 or 6 years. Yeah. Because यही था, मैं कुछ और नहीं कर सकता था. I was not able to do anything without just act. अगर मुझे काम ना मिलता तो शायद मैं स्ट्रीट प्ले करता या ट्रेन में प्ले करता मैं एक्टिंग ही, बट यही करता, मेरे पास ऑप्शन नहीं था. But people told to you that you can do, you have that spark, you have that charisma, or you have that spite of skills. That, it got so many years actually after, even though. What stops a struggling actor who have that all things that can make him a star? So many things. But they are not getting opportunity. What makes them stop? So many things actually. If you are a talented actor, no matter, it doesn't mean that you can you will become a star. See, there is a formula in Hindi movies, Bollywood, especially in Bollywood movies. In that formula, it's difficult to adapt the kind of formulatic. We are actor actually, but actor वाला film कभी-कभी बनता है. Mostly वही बड़ी फिल्में जिसमें personality बहुत अच्छी होती है. Larger than life. Larger than life. ये बल्ले शल्ले होते हैं, 6 feet height, fair, है ना, ऐसा है इंडस्ट्री में. बट वो तो चलो फाइनली कुछ डायरेक्टर्स आए लाइक अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज या अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, इस तरह के डायरेक्टर्स आए तो उन्होंने चेंज किया. दिवाकर बैनर्जी, इस तरह के डायरेक्टर्स आए तो उन्होंने चेंज किया एक माहौल. उसमें हमारे जैसे उसके बाद हमारे जैसे एक्टर आने लगे. अदरवाइज देयर वाज नॉट एनी कॉन्सेप्ट टू कि
ये एक्टर दिखने में तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन इसको लेके मेन लीड बना दे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यू नो. दैट्स व्हाई आई थिंक वो इट टुक 12 years to prove yourself in a lead role. 12 long years. Yeah. So that division between the established formula of Bollywood has been in the industry for years and years, and some of the strugglers like you who have that acting skills but still they are not getting opportunity. How hard is it to break that wall? We see there are so many star kids or big families into the industry, and there is a big wall barrier between the real actors and cinema. Let's say there is also nepotism as well. How hard is it to break that wall, that barrier? See, a single actor or one actor can't break the wall actually. एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी आते हैं, तो वो मिल के ना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता, यू नो. तो उस टाइम पे नियर अबाउट 2005, 2000 to 2010, so many great directors were also coming at the time, you know. तो वो भी अपनी मर्जी की फिल्म बनाना चाहते थे और हम अपनी मर्जी का काम, हम भी ऐसा काम करना चाहते. तो वो कोलैबोरेशन हुआ एक, जिसकी वजह से वो उस तरह की फिल्में भी बनी, और हमारे जैसे जो एक्टर थे जो दिखने में ऐसे थे वो उनकी भी खपत हुई, you know. Let me stop you here. You have repeatedly saying this, you have been told, or people told you, your mentors, your friends told you, you're not star material. Yeah. And you believe that? Yeah, I believe. Why did you believe that? Because I'm not a star material, I'm an actor. What is the difference between star material? I don't believe in material actually. I believe in acting. That's it. पर चलते चलते आप स्टार बन गए. ये तो सामने से आता है, ये लोग बोलते हैं कि यू आर ए स्टार, बट आई बिलीव आई एम एन एक्टर. I've heard the story of Amitabh Bachchan as well, the Big B. He was also told, you're not the star material. You don't look like a hero. You have extra height. At least उनकी हाइट थी. हाइट तो अच्छी होती है ना. हाइट तो बहुत अच्छी होती है. हाइट इज गुड. But there's so many tall guys. हमारी तो हाइट भी नहीं है. I am 5'6". What is the standard of height to be a hero, or let's say star or lead character of Bollywood movie? पहले से, बहुत पहले से चला आ रहा था कि स्टार है तो फेयर होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, है ना, टॉल होना चाहिए. टॉल इज अ गुड थिंग, बिग पर्सनालिटी, ये वो सब. हम कहीं भी फिट नहीं है. Do you think I'm fit? But there were Devanand, there are Amir Khan, but Shahrukh Khan. See they are of course rare. They are really rare actually. So you are also rare. When did you realize that Indian movies, Indian cinema, gave the priority to characters and actors, not the stars? Some directors, they think that character is most important thing in their films actually. That started only after 2000s? Maybe, yeah, of course. कुछ डायरेक्टर्स आते हैं अपने टाइम में, you know, तो वो अपने जो उनका थॉट है उस पर स्ट्रिक्ट होते हैं और उसी तरह की मूवी बनाते हैं, उसी तरह के एक्टर चूज करते हैं वो, कि वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, यू नो, एनी स्टार, वी नीड एक्टर्स. सो उनकी जो विल होती है उसके अकॉर्डिंग फिल्म जब बनती है तो हम उसमें हम आ जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे, मैं भी शायद उस वक्त पे जब व्हेन आई वाज डूइंग गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैं भी बहुत सारे लोगों ने अनुराग कश्यप को बोला था कि नवाज़ को हटा दो, किसी स्टार को ले लो. ये भी हुआ था, बट अनुराग की जिद थी कि मुझे this particular, I want this particular actor. That's it. I want to take you back to the struggling age
when, as you told, there were other hungry people as well, and hungry not only for acting, literally hungry as well. Yeah. But they left behind, and you moved ahead. How do you feel for them who were your partners of struggle? बहुत कैसा फील करूँ मैं? ऑफकोर्स बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि मेरे एक्टर भी बहुत, जो मेरे टाइम के एक्टर थे, स्ट्रगलिंग एक्टर थे, दे वर इक्वली टैलेंटेड, यू नो. बट बहुत सारे रीज़न होते हैं इस्टेब्लिश होने में. आप टैलेंटेड हैं, इज़ गुड, वो तो बेसिक होना ही चाहिए. बट उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आपको सक्सेस दिलाती हैं. और बहुत सारे लोगों की सस्टेन पावर नहीं होती कि वो काफ़ी सालों तक सस्टेन कर लें, यू नो. बहुत सारे हैं रीज़न हैं जिनकी वजह से आप मार्क नहीं बना पाते. I've heard you in a couple of interviews telling about your friend, that roommate Yeah. who was in the same audition, and you got the character and not him. You replaced him actually. Yeah. Can you tell that story? सरफरोश में हुआ था. मेरा जो फ्रेंड, जो पहला मेरा काम था, उसमें मेरा बैचमेट था जिसको वो काम मिला था. बट ही वॉज लाइक disappear somewhere else at the time, you know. Then I got that opportunity, and फिर मैंने किया वो. ऐसे बहुत सारे हुए जहाँ पे किसी वजह से वो उसको नहीं मिला, मुझे मिल गया, मेरा वाला रोल किसी और को मिल गया. होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, यही होता है. And is he in the industry now? No, not. I think he died. Oh, Yeah. so sorry about that. Yeah. What things did you leave behind? Is Nawazuddin Siddiqui, same Nawazuddin Siddiqui, who was trying to find a role in movie in 1998 or 1999, and now that Nawazuddin Siddiqui, and now this Nawazuddin Siddiqui, is that Nawazuddin Siddiqui same? Yeah, absolutely. I'm the same person. Why I have to change myself? I don't need any change in me. Were there points when you had to compromise on your values or left behind the things of Nawazuddin Siddiqui? See, मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग. मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, बट मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ. मैं उसमें नहीं हूँ कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ या क्या छोड़ के जाऊँगा. मैंने बहुत कंप्रोमाइज़ भी किए हैं, ऐसा भी सिनेमा किया है जहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत थी. I want to talk about that. I want to ask about that. What compromises did you do in this course of time? ऑफ कोर्स मुझे मालूम था ये फिल्म इतनी वैसी नहीं है जो मुझे मेरा इनर सेटिस्फेक्शन मुझे दे सके, बट इसमें पैसे बहुत हैं, तो आई डिड इट द मूवी, है ना. और ये भी मैंने किया कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस मूवी को भी मैंने किया. लाइक फॉर एग्जांपल मंटो, yes. मैंने उसमें एक भी पैसा चार्ज नहीं किया. आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी, यू नो. और बाकी जो कमर्शियल मूवी होती है उसमें मैंने बहुत पैसा चार्ज किया. तो वो बैलेंस आपको मालूम होना चाहिए. यू हैव टू नो दैट बैलेंस, यू नो, हाउ टू बैलेंस योर करियर. मैंने क्यों किया ये मंटो फ्री में? बिकॉज मैं वहाँ से बहुत पैसा ले चुका था दूसरी फिल्म से, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, यू नो. तो इसको कंप्रोमाइज़ बोलिए, कंप्रोमाइज़ तो नहीं, बट वो बहुत सारी फिल्में मैं अपने, जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे गांव के लोग कमर्शियल मूवी देखते हैं. Okay, you are doing these commercial movies for mass or people from the village? From my village. So वो आर्टिस्टिक मूवी तो देख नहीं पाते मेरे गांव के लोग, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, यू नो. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो मूवी मैं कर रहा हूँ वो अपने
गांव के दोस्तों के लिए भी करता हूँ और थोड़ा सा few movies for yourself, like Montu or let's say Thakre or Mazi the Mountain Man. What is the process of internalizing those characters you do on biopics? How do you get into the character? What is the process? Depends actually. किसी भी कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर से सो मेनी थिंग, यू नो, वो खुद बताता है आपको कि इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कैरेक्टर को. अब मैं हर एक ही जो थ्योरी है मैं हर कैरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल ठाकरे, जब मैंने जैसे एज यू सेड अबाउट ठाकरे के, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पे बहुत हैं बाला साहब ठाकरे के, तो मैंने सारे वीडियोस भी देखे और फिर उनके घर पे भी गया मैं, जिस रूम में वो रहते थे. एंड माय वॉइस, जो मैंने अपना जो वॉइस था उसको हारमोनियम पे प्रैक्टिस किया, क्योंकि एक हैबिट होती है हर इंसान की कि पर्टिकुलर नोट पे बोलता है वो. जैसे आपकी थोड़ा बेस है आपका, है ना, या तो इससे 2 नोट ऊपर जाएंगे आप, या 1 नोट नीचे जाके यही अब 2-3 नोट में ही पूरी लाइफ निकालते हैं हम लोग. तो उनकी हैबिट थी एक सर्टेन सुर पे बोलने की, तो वो सुर मैंने हारमोनियम पे प्रैक्टिस किया. देन आई रियलाइज़, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ा भी है, कि हर इंसान का जो बॉडी वेट होता है, कोई टो पे होता है, किसी का नी पे होता है, किसी का इस यहाँ पे होता है, किसी का हिप पे होता है, किसी का लो बैक पे होता है. तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बाला साहब ठाकरे वेट मोस्टली कहाँ रखते थे. और लाइक वो सिगार पीते थे, तो सिगार पीते तो ऐसे सिगार पीते थे, लेकिन जब स्पीच देते थे तो यही जो फिंगर है ऐसे हो जाती थी उनकी. तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें को स्कोर करके कैरेक्टराइजेशन किया उनका. सबसे बायोपिक में सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है कि मिमिक्री का डर लगता है. कि आप देखिए, मिमिक्री करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो एज इट इज़ बाला साहब ठाकरे लगेंगे, लेकिन वो मिमिक्री है. इंटरनलाइजेशन, थॉट प्रोसेस एंड आपका खुद का इंटरप्रिटेशन किसी भी कैरेक्टर को ना, वो बायोपिक के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात होती है. आई थिंक करेक्ट होती है. दैट इज़ वाई इसलिए बायोपिक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. इट्स अ वेरी थिन लाइन. इधर आप खाई में जा सकते हैं या आप डूब सकते हैं, यू नो, वैसा है. तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मिमिक्री भी ना हो लेकिन इम्प्रेशन भी आए. तो मैंने ट्राई किया कि मैं भी लगूं, मैं भी दिखूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं, तो नवाज़ भी दिखना चाहिए और बाला साहब ठाकरे का इम्प्रेशन भी होना चाहिए. तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बाला साहब ठाकरे हैं लेकिन नवाज़ भी है. तो वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट होता है किसी बायोपिक को करने का. Well, that was the story of Thakre. I would also like to know about the character you did on Mazi. Yeah. Dashrath Mazi. So how was the process? Was it so difficult actually. Physically it was so difficult actually. तो दशरथ माझी का सिर्फ फोटो ही है, या हाँ एक आध वीडियो भी है. तो we tried to do like the same thing because कॉस्ट्यूम्स, ये अपीयरेंस, ये तो उनका काम है. मेरा काम है कि इंटरनलाइज करना उसके दशरथ माझी के कैरेक्टर को. और सेम माउंटेन पे हमने वो शूट किया. जो हथौड़ा था वो भी रियल था, हैवी था. तो उसका पेन, उसकी सफरिंग, उसके बोलने का अंदाज, यू नो, वो सारा पकड़ने की कोशिश की. वो मेरी लैंग्वेज तो नहीं है. You haven't seen that person in person. You haven't seen that in video. Yeah. You just saw a picture of him. In that case, what happens? A director puts the character on you, or you get into the character yourself? Of course, director भी का भी बहुत बड़ा contribution होता है, और at the same time आपकी भी responsibility होती है, और दूसरा imagination भी होती है. कि हम लोग जहाँ से फिल्म शुरू करते हैं उससे पहले, वो तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से पहले भी उसका लाइफ रहा होगा, वो भी इमेजिन करना पड़ता है. एज एन एक्टर यू हैव टू इमेजिन उसका पास्ट लाइफ, उसका जहाँ से शुरू हो रही है फिल्म, उसके बचपन से आपको इमेजिन करना पड़ेगा
कि किस एटमॉस्फेयर में वो पला बड़ा, क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस तरह का एनवायरनमेंट था, गर्मी थी, सर्दियाँ थी, कैसे था, कहाँ रहते थे, क्या खाते होंगे, तो ये सारा चीज़ें इमेजिन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स. So this is the complex process. Yeah, absolutely. How do you come out of that character? It's difficult, How long do you stay on that character? See, you are not a computer, you are a human being. Yeah. So it's really very difficult to come out from your character which you have done, but you have to come out from your character. Otherwise, the other character will So be. what do you do? The film has already released. हाँ, Is there any instance that you have stayed in that character for long, months and months? मेरा कैरेक्टर ख़त्म होता है, कुछ टाइम लगता है उसको जाने में, 20 days, maybe 1 month, you know. और या तो मैं अपने गांव चला जाता हूँ, या लोगों से आजकल ट्रोलिंग में गाली सुन लेता हूँ, तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. Okay, that's interesting. Do people troll you? किसको? प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रोल करते हैं लोग तो. Yes, but you are loved by everyone, isn't it? See, आजकल हर आदमी को ट्रोल कर देते हैं लोग. Okay, this is interesting. Yeah. What do people say? Why do people troll you? See, हम लोग ना, मैं frankly speaking, in the whole world, we are like very, you know, keen. Like अगर सेलिब्रिटीज़ या कोई स्टार है या whatever, या पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है, ये वो, छोटी सी भी हरकत नेचुरल, जो कोई भी ऐसी गड़बड़ हो जाता है तो उसको बहुत ट्रोल किया जाता है. तो एक वो अजीब सा एक नेस्टीनेस है, कुछ आई डोंट नो क्या है, बट कुछ तो है. वाई आई डोंट नो वाई पीपल आर लाइक सो क्रेजी अबाउट द पीपल हु आर लाइक. एक मैं बताना चाहता हूँ आपको, सक्सेस सब चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों से नफरत करते हैं, हेट करते हैं लोग. You want to be successful, but I hate everybody the people. want to be successful, but you are hating, like you hate successful people. Why does it happen? I don't know why. See, हम मेरे टाइम में जब हम यंग थे, जो सक्सेसफुल लोग होते थे, हम उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे कि ये नीचे से आया, क्या क्या चीज़ें इसने देखी होंगी और आज ये सक्सेसफुल है, तो एक रेस्पेक्ट निकलती थी. लेकिन आज जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको लोग गालियां देते हैं, लेकिन सक्सेस हर आदमी चाहता है. If there was social media back then, maybe you were also trolling someone? Absolutely, क्योंकि it's a whole atmosphere is like that, you know. The whole atmosphere is like that. We are not out of the. So the character of society hasn't changed. Is that so? No. मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा कुछ बदलाव आता है. कुछ लोग आते हैं, है ना, कुछ लोग आते हैं जो बदलाव लाते हैं. यू नो, एक बहुत ही गंदा माहौल है, डर्टी एटमॉस्फेयर. इन डर्टी एटमॉस्फेयर द सम ग्रेट पीपल कम and they change the entire fabric. And some people don't like that. Some people don't like. Or maybe they can't accept the change. Yes, absolutely. If you want to do something good for the people, आप भी ट्रोल हो जाओगे आज की डेट में. मैं तो ट्रोल हो रहा हूँ. हो रहे हो? Every day. Wow, that's good. That means you are big now. Big shot. Is that so? Yes. I don't believe that. Well, we come through the news from Bollywood that there is that dirty politics in Bollywood. What is that? Do you know वो तो about हर जगह है. सिर्फ that? बॉलीवुड. No, I want to know about the politics. What kind of politics is there in Bollywood? पॉलिटिक्स तो देखो हर प्रोफेशन में है. आपके प्रोफेशन में नहीं है क्या? जस्ट टेल मी. हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है. उस आगे बढ़ने में वो साइड के लोगों को, हर आदमी चाहता है कि साइड थोड़ा भागना है मुझे, यू नो. वो हर सिर्फ बॉलीवुड को थोड़ा बदनाम ज़्यादा किया जाता है. ऐसा नहीं कि है, नहीं है पॉलिटिक्स है, लेकिन वो पॉलिटिक्स हर जगह है. पॉलिटिक्स में भी है. Yeah, that's the source. Absolutely. Do movies also come up with politics?
Yes. Do movies have agendas, propagandas? Agenda, propaganda, yes, of course. बहुत ही प्रोपेगेंडा और वाली फिल्में भी बनती है, ऐसी बात. A movie can do a politics. Absolutely. How? आप बनाओ ऐसी फिल्में Can you कि give जिसमें examples? सर्टन कम्युनिटी को डाउन किया जाता है और सर्टन कम्युनिटी को हीरो बनाया जाता है ना. वो उस तरह की हर संसार के हर जगह होता है. वो रशिया में भी हुआ होगा, वो अमेरिका में भी होता होगा, वो हर जगह होता है कि चंद लोगों को खुश करने के लिए उस तरह की मूवी, प्रोपेगेंडा मूवी बनाई जाती है. वो हर जगह होता है. And also that we see some of the stars, or let's say actors, are projected or are playing as the government supporters or some party supporters, and they are not talking about minorities or the rights of the people, or they are just demoralizing the issues, the rights of the people. And some are speaking for the rights of the people, and they are boycotted. They are cornered. They are shuttered. Why does it happen? I don't know why it's happening. Maybe that's the reason you are trolled. I'm telling you कि हर आदमी ट्रोल होता है. मोदी जी को भी ट्रोल करते हैं लोग. ऐसे देखो ना कितना ट्रोल करते हैं. हर आदमी को ट्रोल करते हैं. एक सर्टन पोजीशन में जाने के बाद हर आदमी ट्रोल होता है. जैसे शेक्सपियर के प्लेज होते थे ना, तो रॉयल लोगों की ट्रेजेडी को दिखाते थे वो. तो जो गैलरी के लोग होते थे उनको बड़ा मज़ा आता था. जब डाउनफॉल होता था रॉयल लोगों का, ड्यूक का जब डाउनफॉल होता था तो लोगों को बड़ा मज़ा आता था. तो सैडिस्टिक जो प्लेजर होता है वो तभी होता है कि जब आप किसी एक पोजीशन पे होते हैं और डाउनफॉल होता है वहाँ पे, तो लोगों को बड़ा अच्छा, बड़ा ये हो रहा था. तो गुड 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 गुड. तो वो इसीलिए शेक्सपियर के सारे प्ले हिट होते थे. जो गैलरी जो है ना, गैलरी के जो ऑडियंस थी वो बहुत इन्जॉय करती थी रॉयल कैरेक्टर्स का, रॉयल लोगों का जब डाउनफॉल दिखाते थे. Okay, I want to go back to that point when you said that you did commercial movies or the mass movies and the artistic movies, your choice. In one of the recent conversation you did in Nepal, you said that movies are not only the means of entertainment and circus. It is not circus, and it doesn't end with entertainment. I got a question on that. Have you ever done circus in movies? Yeah. I did circus in movie. How do you feel? लेकिन मुझे पता होता था ना कि ये सर्कस है. मुझे वहाँ से पैसा मिल रहा होता था. अगर आप कोई ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो सर्कस की तरह है, लेकिन आपको मालूम है, यू नो इट वेरी वेल कि इट्स अ सर्कस, देन इट्स ओके, आई थिंक. लेकिन आप उसको अगर एडवोकेसी के लेवल पे ला रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि इट्स अ गुड मूवी, देन you have to understand so many things. What is that good movie? Good movie आपको जो आपको सोचने पे मजबूर करे. Good movie is not only कि मुझे मज़ा आ गया, इससे solid entertainment, oh wow, and then you reach your home and then you forgot everything what you watch. मूवी अच्छी मूवी है कि जो आपके सालों साल तक माइंड में रह जाती है. Like for example शंबाला, मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में बहुत सालों तक रहेगी वो मूवी. इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ वंडरफुल मूवी. तो गुड सिनेमा वही होता है जो आपको झकझोर देता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक मूवी थी, एक डॉक्टर की मौत, पंकज कपूर थे उसमें जी. मैंने वो मूवी जब मैं बहुत छोटा यंग था तब मैंने देखी, टीनेजर था, तो वो मूवी आज तक मेरे माइंड में है. तो गुड सिनेमा का इम्पैक्ट ऐसा होता है, और मेरी लाइफ बदल गई उस मूवी को देखने के बाद. उसका एक डायलॉग था कि हम लोग जो यहाँ आते हैं एक पर्पज़ होता है,
हम रैंडमली नहीं आते, एक पर्पस होता है। कुछ लोग देखो, आज कुछ लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जिन्होंने डिस्कवर की चीज़ें, इन्वेंट की चीज़ें, जिनकी वजह से हम फ़ायदा आज उठा रहे हैं। ये लाइट हो, ये सारे सामान हो, ये कैमरा हो, कुछ भी हो, किसी ने तो इन्वेंट किया था ना, तो उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं आज। हमें तो थैंक्स बोलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इन्वेंट की चीज़ें हमारे लिए, हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो वो चंद लोग आते हैं, वो चैलेंज लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और कुछ इन्वेंट करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये पूरा वर्ल्ड फिर उसका फ़ायदा उठाता है। तो इस तरह का पर्पस था उस मूवी का, एक डॉक्टर की मौत का, और उसको देख के मेरा लाइफ चेंज हो गया। मैंने सोचा मैं कुछ भी ऐसा करूँगा जिसमें मैं डिस्कवर करूँ चीज़ों को। तो मुझे फिल्मों में मैं क्या करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। वी आर इन द प्रोसेस, यू नो। That is why we are not complete actor. We are just trying. That's why we are not getting good movies in all the industries around the world. Maybe that be in Bollywood or Hollywood or in Nepal. See that exactly. But the circus में बच्चों को मज़ा आता है. You are a mature person. वो उनके लिए ठीक है, वो एंटरटेनमेंट, कि बच्चों को सर्कस में मज़ा आता है। मुझे भी वो शॉकिंग वैल्यू होती है उसमें, है ना, अचंभित कर देने वाली चीज़ें होती हैं। वाह वाह, ओ माय गॉड, ऐसा होता है। तो इंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन जब घर जाते हैं फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन जो अच्छी मूवी है, जो मैंने 20 साल पहले, 40 साल पहले देखी थी, मैं आज भी उस मूवी के बारे में बात करता हूँ। ये फ़र्क है। In life we go through so many struggles. We have to cry, we have to shout, we have to deal many problems, stress. But movies are also showing same thing. And how do we get entertainment from those movies? And we are calling them good movies. See, it depends actually. अगर आपको उस मूवी में मज़ा आ रहा है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे उस मूवी में मज़ा नहीं आता, मुझे दूसरी मूवी में मज़ा आता है, मेरी पर्सनल चॉइस है। तो इसलिए जो आर्टिस्टिक मूवीज़ होती हैं कि उनका एक पर्टिकुलर एक सर्कल होता है, कुछ लोग ही उन मूवीज़ को देखते हैं। वो टेस्ट उन्होंने पढ़ के डेवलप किया है, एजुकेट करके डेवलप किया है। मैं आपसे बोलूँ कि एक बॉलीवुड डांस की जगह भरतनाट्यम देखो, तो आप बॉलीवुड डांस देखेंगे कि कोई देखेगा शायद 100 में से 70-80% जो है ना, वो बॉलीवुड डांस देखेंगे, 10% या 20% जो है वो भरतनाट्यम देखेंगे। इट डिपेंड्स एक्चुअली। ऑफकोर्स उसमें आपको मज़ा आ रहा है। इसको थोड़ा सा इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए, भरतनाट्यम का टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। इतना फ़र्क है। जो आर्टिस्टिक फॉर्म है जितनी भी, या ट्रेडिशनल फॉर्म्स होती हैं, जो शास्त्रीय संगीत जो होता है, या उसके लिए डेवलप करना पड़ता है आपको टेस्ट। So whether you dance, whether you act, absolutely, whatever you're doing, you have to enjoy that moment. Of course. मुझे उसमें enjoy ज़्यादा लगता है। मुझे उसमें आर्टिस्टिक फिल्मों को देख के मुझे अच्छा लगता है। वर्ल्ड सिनेमा जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, क्या सिनेमा है। In Bollywood, there are few faces. We are also following them, and they are renowned for not for their stardom, but their acting skills and craft. You are one of them. Do you feel some kind of performance pressure when you are doing movies? नहीं, प्रेशर तो मैं नहीं लेता हूँ। I don't take any unnecessary. But you know, जब शूट कर रहा होता है कि मैं कितनी ऑनेस्टी के साथ कर सकता हूँ, उसको वो ट्राई करते हैं। We always try to do something new with full of honesty. That is the only actor's work actually. वही मेरे हाथ में। Rest of the things are like producer, directors or like everyone, वो decide करेंगे। Okay. Is there any character you want to live a long life with? बहुत सारे। अभी तो मेरा जर्नी, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं डेप्थ में जाता हूँ ऐसा स्केर्ड हो जाता हूँ। यू नो, बहुत सारी चीज़ें जो करनी बाकी हैं अभी। आई हैव टू डू सो मेनी थिंग एक्चुअली, बट लेट्स सी, इट्स अ जर्नी। What character
are you longing for? What character you want to do in coming days? मैंने कोई अपने बैठाया नहीं माइंड में कि मैं सर्टेन टाइप का कैरेक्टर ही करना चाहूँ। इस मैं मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में 1000 ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो मैं हम कोशिश करेंगे उनको निकालें, टैप करें, डिस्कवर करें अपने अंदर से क्या क्या चीज़ें। तो एज आई सेड, इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। I'm asking this question because some actors like you are always on the risk of this typecast. नो 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 नो, वी आर नॉट टाइप। सी, हमारी अच्छी बात यह है कि मैं ठाकरे भी कर लेता हूँ, मंटो भी कर लेता हूँ, मैं गैंगस्टर भी करता हूँ और कॉप भी करता हूँ। टाइप कास्ट होता है स्टार, उनके सर्टेन जेस्चर पोस्चर होते हैं। Yes. उसमें उनको आना पड़ता है क्योंकि वही लाइक करते हैं लोग। If you're not fighting, people are not liking. Absolutely. If you're not सर्टेन dancing, एक्सप्रेशन, सर्टेन जेस्चर पोस्चर वही लाइक करते हैं। 1000 ऑडियंस जो है, वो लोगों की जो लोग हैं वो उनको उसी स्टाइल में देखना चाहते हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टर्स को, जितने भी एक्टर्स, मेरे अलावा भी जितने एक्टर्स हैं, सिर्फ एक्टर के पास अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने की। तो हमें तो टाइपकास्ट कोई कर ही नहीं सकता। is there any example or experience that audience have not liked you in certain characters? यस, रमन राघव। Yes, that was on my mind. Why? Why? सी, हार्डकोर रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसने 40 मर्डर किए, बहन का भी मर्डर किया। अब जब ये हमने दिखाया तो लोगों ने थू बहन का भी मर्डर करता, बट रियल लाइफ में तो किया। तो वो रियलिटी, जो हार्डकोर रियलिटी एक्सेप्ट करना, रियल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतना डर्टी थिंग्स होती हैं, गंदगी है, हम वो फिल्मों में दिखा ही नहीं सकते क्योंकि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जबकि रियल लाइफ में समाज में है, वो सोसाइटी में है वो गंदगी। But we can't show that. Yeah. But people are showing, some of the films are showing that hard reality, harsh reality, and they are being accepted as well. Yeah, some point, at some point, yeah. So there are so many followers of you, and as Nawazuddin Siddiqui, people watch you, people follow you in Nepal as well. Any message to your audience who are in Nepal? I want to say only one thing, कि like नेपाल में जो इस वक्त पे फिल्में बन रही हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिक बन रही हैं, और उसी को कंटिन्यू रखें, उन्हीं फिल्मों को देखें। इंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार आपने इनमें इंटरटेनमेंट खोजने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिनेमा नेपाल को ग्लोबल लेवल पे ले जाएगा। बस मैं ये तो उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। So thank you so much for being with us. We'd like to see you in Nepal again and again. Yes. We also Inshallah. like to watch you on Nepali movie as well. Yes, obviously we are watching you and enjoying your movies in Bollywood. We want more versatile characters and you very your much. charismatic performances. We wish you all the very best in your career. Thank you. Thank you so much for being with us.